Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in the last lecture we have discussed about the reaction of water with alkali and alkaline earth metal. Dear student, when water react with alkaline earth metal, they form their hydroxide and oxide. Like when calcium react with water to form calcium hydroxide and magnesium react with water to form magnesia या magnesium oxide. We also discuss the most important reaction of water with non-metal, in which we discuss about the reaction with chlorine, which is one of the most important chemical reaction. When chlorine react with water, they form hydrochloric acid and hypochloric acid, and this hypochloric acid decompose to form hydrochloric acid and nascent oxygen, and it can be used. This reaction can be used by the oxidation of gum and decolorize the fabric. Okay. Beside this, we discuss reaction with some other non-metal like carbon, silicon, and sulfur. We also discuss the reaction of water with metallic oxide. When water react with metallic oxide, they form their respective hydroxide. Dear student, we see that the oxide of metal are basically basic in nature. Okay, the oxide of metal are basic in nature. When oxide of metal react with water, they form basic compound like sodium hydroxide, calcium hydroxide, and when water react with non-metallic oxide, they form respective compound, that is acid. Okay, so it's mean that oxide of non-metal are basically acidic in nature. And the last one, which is one of the most important chemical reaction, that is hydrolysis reaction. We see that the reaction of salt of weak acid or salt of strong acid with water to form acidic or basic solution is called hydrolysis reaction. So this is the some of the main points of previous lecture. Now student, in this lecture we study about the further chemical properties of water and its characteristic properties. Now let's start. Dear student, as we know that the component which are present in small amount in solution is called solute, and the component which is present in solution in larger amount is called solvent. ओके, जो चीज़ आपके पास कम अमाउंट में सोल्यूशन के अंदर होती है उसको बोलते हैं सालूट, और जो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. ओके, ये टर्मिनोलॉजी आपने 9th क्लास में पढ़ी है. डियर स्टूडेंट, वाटर जो है ये आपके पास बहुत ही एक्सीलेंट सॉल्वेंट का काम करता है, या वाटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन सॉल्वेंट. ओके, वाई वाटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट नॉन सॉल्वेंट. ओके, इसके अलावा बहुत सारे सॉल्वेंट हमारे पास पाए जाते हैं लाइक बेंजीन, एसीटोन और बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास अवेलेबल है. लेकिन वाटर क्यों हमारे पास एक बेस्ट सॉल्वेंट का काम कर रहा है? तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. इट कैन डिज़ॉल्व मोर सब्सटेंस देन अदर सॉल्वेंट. ओके, वाटर के अंदर बाकी सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सब्सटेंस हल होते हैं, क्लियर, डिज़ॉल्व होते हैं या हल होते हैं. ओके, इट कैन डिज़ॉल्व मैनी इनऑर्गेनिक एज वेल एज सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, majority of inorganic compound are dissolved in water, but some of the organic compound can also be dissolved in water. Okay, like methanol, ethanol, these compound are basically organic, but still these are dissolved in water. Okay, so why these compound, why water dissolve a lot of substance into it? It is due to the fact that it is
called universal solvent. Due to this phenomena, due to this property to dissolve a lot of substance into it, water is called as universal solvent. Okay, वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ॉल्व होने की वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. क्लियर? तो अक्सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ओके, so your answer should be that water is universal solvent because it can dissolve more substance than any other solvent, and it can dissolve many inorganic as well as certain organic compound. Okay, so student, this universal solvent properties is sometimes useful, but it is also the cause of water pollution. Okay, वाटर के अंदर बहुत सारी जो सब्सटेंस वगैरह हैं ये हल होना, या वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का जो काम कर रहा है ये हमारे लिए यूज़फुल तो है, लेकिन सम टाइम हमारे पास ये पोल्यूशन वगैरह भी काज करते हैं. क्लियर? सो यू कैन से दैट दिस इज़ बोथ बेनिफिशियल एंड हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. ओके, अगर लेट्स सपोज आप वाटर से हम बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं सॉल्यूट जिसको वाटर के अंदर डिज़ॉल्व करते हैं या फूड वगैरह पकाते हैं, तो ये हमारे पास बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ॉल्व हो रही हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ॉल्व होने की वजह से वाटर पोल्यूशन भी काज करता है. सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन हमारे पास हार्मफुल प्रॉपर्टीज़ भी है. ओके, तो आई होप दिस सम पॉइंट इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ स्टूडेंट, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वाटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हल हो रही हैं, इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया गया है. अब यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया गया है, इसकी कुछ रीज़न हैं, वो रीज़न क्या हैं वो देखते हैं. This characteristic properties of water is because of following three reason. Okay, ये जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वाटर की 3 रीज़न की बेस पे है. वो 3 रीज़न हमारे पास क्या हैं? These 3 रीज़न आर polarity of molecule, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, इस लेक्चर में हम ये 2 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, नाम से ही जाहिर है पोलैरिटी मीन टू से पोल्स का होना. क्लियर? एंड यू ऑलरेडी नो दैट वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर. ओके, आपने वाटर का मॉलिक्यूल तो 9th क्लास में देखा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, और वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन होता है, और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव साइन होते हैं. ओके, वाटर मॉलिक्यूल हैज़ पोलर स्ट्रक्चर. ओके, you know that this oxygen, the oxygen end of water is partial negative and while the hydrogen end is partial positive. जो ऑक्सीजन एंड होता है ये पार्शियल नेगेटिव होता है, जबकि हाइड्रोजन के जो एंड होते हैं वो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव होते हैं. दिस इज ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम. ओके, ये क्यों पार्शियल नेगेटिव होता है, ये क्यों पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये आपको 9th क्लास में भी बताया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा. ओके, तो ऑक्सीजन इज 3.5, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज 3.5 एंड hydrogen is 2.1. It's mean that oxygen is more electronegative as compared to hydrogen, so that's why it gain partial negative charge while hydrogen gain partial positive charge. Because of this polar structure, water is an excellent solvent for ionic solutes such as. ये जो पोलर स्ट्रक्चर है वाटर की, इस पोलर स्ट्रक्चर की वजह से स्टूडेंट हमारे पास वाटर एक्सेलेंट सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो कि आयनिक सॉल्यूट होते हैं. ओके, आयनिक सॉल्यूट आर दो सॉल्यूट इन विच आयनिक बॉन्ड
is present. Okay, all those compound which having ionic bond between them are called ionic solute. Okay, सो पोलर नेचर होने की वजह से वाटर के अंदर आयनिक सालूट डिजॉल्व होते हैं. आयनिक सालूट कौन कौन से? लाइक मिनरल साल्ट्स और मिनरल एसिड और बेसिस. मिनरल साल्ट्स बच्चों उन साल्ट को बोलते हैं जो आप ज़मीन से निकालते हैं. ओके, मिनरल एसिड एंड बेसिस आर दोज विच यू कैन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ. ओके, तो हर या ऐसे एसिड या बेसिस जो आप उन मेटल्स या नॉन मेटल से बनाते हैं जो आप अर्थ से निकालते हैं, तो उन एसिड को आप बोलेंगे मिनरल एसिड एंड बेसिस. ओके, सो ऑल आयनिक कंपाउंड आर डिजॉल्व इन वाटर. इट इज़ ड्यू टू पोलर स्ट्रक्चर. ओके, नाउ स्टूडेंट, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वाटर के अंदर डिजॉल्व होते क्यों हैं? रीज़न तो अभी मैंने नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये वाटर के अंदर पोलर स्ट्रक्चर होने की वजह से डिज़ॉल्व होते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पोलर स्ट्रक्चर होने की वजह से आयनिक कंपाउंड इनके अंदर डिज़ॉल्व होते क्यों हैं? तो चलिए देखते हैं. लेट्स कंसिडर स्टूडेंट कि मैं क्या करता हूँ कि एक आयनिक कंपाउंड को लाइक NaCl विच इज़ वेरी सिंपल को पानी के अंदर डालता हूँ. ओके, सो होगा क्या? व्हेन आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl इज प्लेस्ड इन वाटर, द ब्रेकिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड अकर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेकिंग ऑफ आयनिक बॉन्ड अकर. जो आपके पास NaCl होगा, NaCl का जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर आयनिक जो NaCl के बीच में जो आयनिक बॉन्ड होगा उसकी ब्रेकिंग होगी. ओके, इज दैट क्लियर? ब्रेकिंग होगी. जब आपके पास NaCl की ब्रेकिंग हो जाएगी तो आपके पास Na और Cl आ जाएगा. क्लियर? ज़ाहिर है NaCl को आप ब्रेक करेंगे तो Cl के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव. ओके, नाउ दिस द वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन सच अ वे दैट their negative poles are towards the positive ion like sodium ion. Okay, when you dissolve ionic compound like NaCl in water, the NaCl split into sodium ion and chloride ion like Na positive and chloride Cl negative. Okay, now the water molecule orient in such a way that their negative poles are towards the positive ion like sodium ion. Okay, वाटर का मालिक्यूल अपने आप को इस तरह ओरिएंट कर लेगा कि वाटर मालिक्यूल का जो नेगेटिव पोल है या नेगेटिव साइड है वो हमारे पास सालूट के पॉजिटिव आयन की तरफ आ जाएगा. इसी तरह हमारे पास जो वाटर मालिक्यूल का पॉजिटिव पोल है, ओके, वाटर मालिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल है वो अपने आप को इस तरह ओरिएंट कर लेगा कि उसका पॉजिटिव पोल्स नेगेटिव आयन के सामने आ जाए. ओके, ये जो बात मैंने आपको बताई है इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से देख लेते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी. मान ले मैंने NaCl को पानी के अंदर डाला तो NaCl मैंने अभी आपको कहा कि NaCl दो चीज़ों के अंदर स्प्लिट होगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. ओके, दिस वन, दीज टू आयन. अब सोडियम के इर्द गिर्द मैंने कहा कि आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल आएंगे एंड यू नो दैट कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पार्शियल नेगेटिव पोल जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन सोडियम के सामने आ जाएगा. ओके, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं इसमें भी ऑक्सीजन पॉजिटिव या नेगेटिव पोल होता है, ऑक्सीजन ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी और ये भी, और नेगेटिव अपने पॉजिटिव के सामने आ जाएगा. क्लियर? जो मैंने पहली बात की थी कि वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह ओरिएंट करेगा कि इसका नेगेटिव पोल आ जाएगा पॉजिटिव आयन की तरफ. ये पॉजिटिव आयन है और वाटर के नेगेटिव पोल्स अपने आप को इसने ओरिएंट कर दिया. क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट में मैंने बताया कि वाटर का जो पॉजिटिव पोल्स है वो अपने आप को नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट ओरिएंट करेगा. ये आपके पास नेगेटिव चार्ज क्लोराइड आयन था, क्लोराइड आयन के अगेंस्ट वाटर मॉलिक्यूल अपने हाइड्रोजन को उसके सामने लाएगा और ऑक्सीजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा. क्लियर?
हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव हमारे पास नेगेटिव क्लोराइड के सामने आ जाएगा। सब में देख सकते हैं ये दोनों हाइड्रोजन इसके सामने आ जाएंगे। क्लियर, ये दोनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव हैं तो इसके सामने आ जाएंगे। सिमिलरली ये सारे इसी तरह आ जाएंगे। क्लियर। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई उसमें यही बताया कि आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर क्यों डिज़ॉल्व होते हैं। तो रीज़न आपके सामने है। तो द मेन रीज़न इज़ दैट all ionic compound can dissociate into water and form so cation and anion, and these cation and anion are surrounding by water molecule in such a way that water molecule orient in such a way that their negative poles are towards their positive ion while their positive poles of water molecule orient himself around the negative ion. Okay, now come to the second reason, that is hydrogen bonding in water. Why water molecule is यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसकी पहली रीज़न तो हमने डिस्कस कर दी, पोलैरिटी। सेकंड रीज़न है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 9th क्लास में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ा है डिटेल से कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास वो कंपाउंड बनाते हैं लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके साइज़ थोड़े स्मॉल हैं, छोटे साइज़ होने की वजह से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो वाटर में भी ऑक्सीजन तो आता है। तो मैंने 3 एलिमेंट के नाम बताएं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट मोस्टली क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन तो है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, किस तरह बनते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हाइड्रोजन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज पार्शियल पॉजिटिव वाइल दी ऑक्सीजन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज पार्शियल नेगेटिव। वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हम देखते हैं तो पार्शियल नेगेटिव हमारे पास ऑक्सीजन पे होते हैं और पार्शियल पॉजिटिव हमारे पास हाइड्रोजन पे होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैज़ 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं तो इसमें हमें 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और यू कैन से दैट 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। आपको सिंपल बताया गया 9th में कि ऑक्सीजन हमारे पास 6 ग्रुप से बिलोंग रखते हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 को देख लेते हैं। पहला यहाँ से शेयर है 1, दूसरा यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हैं और ऑक्सीजन ने यहाँ अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट किए। 6 ये आ जाते हैं, 2 ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और हाइड्रोजन ने अपने डुप्लेट रूल कंप्लीट किए हुए हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 लॉन पेयर्स हमें दिखाई देते हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ओके, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ अदर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, एक वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ। मतलब मैं ग्लास के अंदर अगर पानी रखता हूँ तो उस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसने हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाए होंगे। दूसरे एक के साथ नहीं, चारों तरफ से उसने बनाए होंगे। देख लेते हैं कि किस तरह बनाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान ले मेरे पास ये एक सेंट्रल वाटर का मॉलिक्यूल्स है। इस सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको दिखाई दे रहा है कि इस हाइड्रोजन ने दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। इसी वाटर मॉलिक्यूल के सेकंड हाइड्रोजन ने दूसरे ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। और यहाँ पे 2 लॉन पेयर जो हमें दिखाई दे रहे थे, जो मैंने मेंशन किए थे, एक लॉन पेयर ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए और एक लॉन पेयर ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, सो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ओके, सो जो कि मैंने आपको बाय स्ट्रक्चर बता दिया। नाउ स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, द वाटर मॉलिक्यूल अरेंज इन टेट्राहेड्रल मैनर।
ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, मैंने अभी कहा कि एक वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे वो बात मेंशन की हुई है कि वाटर मॉलिक्यूल अरेंज इन टेट्राहेड्रल मैनर। टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्रा मीन 4, हेड्रल मीन कॉर्नर। ओके, कि वाटर मॉलिक्यूल 4 तरफ से जब दूसरे 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो चारों तरफ से बनाएगा, और इसकी शेप जो होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप। ओके, टेट्राहेड्रल शेप ये आपको दिखाई दे रही है, मैं आपको समझा देता हूँ। टेट्राहेड्रल शेप ये होती है कि इन चारों बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109.5 का होगा, मतलब सारों के बीच में बॉन्ड एंगल बराबर होगा। और ये वाला आप अज्यूम कर लें, ये वाला बॉन्ड जो है ये अपवर्ड है। ओके, ऑक्सीजन अपवर्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल के साथ, दिस इज साइड वाइज। ओके, साइड पे, राइट साइड पे। इसको आप अज्यूम कर लें बैक। ओके, मतलब ये अब पेज के उस साइड है, इनर साइड, और इसको अज्यूम कर लें फ्रंट पे निकल रहा है, यूं इस तरह आ रहा है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। क्लियर? अगर आपको फिर भी ये टेट्राहेड्रल शेप क्लियर नहीं होती तो आप गूगल से सर्च कर लें, तो आपको टेट्राहेड्रल 3D फॉर्म में शेप इसकी मिल जाएगी। ओके, नाउ स्टूडेंट, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सम कोवलेंट कंपाउंड, सम कोवलेंट नहीं बल्कि सम पोलर कोवलेंट कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। ओके, अभी तक तो हमने बात की थी कि हमारे पास आयनिक कंपाउंड इजाल होते हैं, उसकी रीज़न भी बताई। अब कोवलेंट कंपाउंड भी, कुछ कोवलेंट कंपाउंड जो पोलर होंगे वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाते हैं। क्लियर? कुछ कंपाउंड जो होंगे कोवलेंट लेकिन पोलर हों वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से वो अभी वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाते हैं। उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास आप शुगर पानी के अंदर डालते हैं, डिज़ॉल्व हो जाते हैं। हालांकि शुगर ऑर्गेनिक है, क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसको डिज़ॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन शुगर पानी के अंदर इसलिए डिज़ॉल्व हो रहा है कि शुगर मॉलिक्यूल form hydrogen bonding with water molecule. Similarly, glucose is also dissolved. Methanol also form hydrogen bonding. Okay, but this compound like HCl do not form hydrogen bonding. Okay, but still it can dissolve in water. It is due to polar in nature. Okay, remember polar covalent compound water के अंदर dissolve होते हैं, non polar नहीं होते। like बेंजीन हो गया, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये वाले कंपाउंड वाटर के अंदर डिज़ॉल्व नहीं होते बिकॉज दीज आर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए एक बार फिर मेन पॉइंट को रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमने बात की वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाई वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट? ओके, वाटर इज़ बेस्ट नॉन सॉल्वेंट, इट कैन डिज़ॉल्व मोर सब्सटेंस देन अदर solvent and it can dissolve many inorganic as well as certain organic compound. Due to this fact it is called universal solvent. Okay, now second reason of universal solvent. The characteristic properties of water is because of following three reasons, or you can simply say that the properties of water as a universal solvent is because of three reasons, and these three reasons are polarity of molecules, second hydrogen bonding in water molecule, and third one dielectric constant. Third main point is polarity of molecule. As we see that oxygen end of water molecule is partial negative, while the hydrogen end of water molecule is partial positive due to high electron negativity difference between hydrogen and oxygen atoms. Because of this polar structure, water is excellent solvent for ionic compound like minerals, salts and acid and bases.
Fourth main point is hydrogen bonding in water molecule. Dear student, the hydrogen end of water molecule is partial negative, partial positive, while the oxygen end of molecule is partial negative, and due to this polar in nature, water molecule can form 4 hydrogen bond with other water molecule, and this water molecule arrange in tetrahedral manner. Okay, and due to this hydrogen bonding, some of the polar covalent compound can form hydrogen bonding with water and can dissolve in water. Okay, so these are some of the main points of today lecture. Now student, आपका होमवर्क ये होगा कि आपने पूरा का पूरे लेक्चर को लिखना है. मेन अक्सर स्टूडेंट अभी तक कंफ्यूज हैं कि मेन पॉइंट लिखने के क्या लिखना है. कुछ भी मेन पॉइंट नहीं लिखना है, ये मेन पॉइंट उठा के नहीं लिखने, बल्कि आपने होल लेक्चर लिखना है. ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़.